Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ निहारिका। RBI reduces policy repo rate by 50 basis points to 5.5%. Also slashes the cash reserve ratio by 1%. Reduces inflation projection for financial year 2025-26 from 4% to 3.7%. Sensex jumps nearly 750 points. Nifty surges to cross the 25,000 mark. And Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone and inaugurated and dedicated to the nation multiple development projects worth over 46,000 crore rupees in Jammu and Kashmir. आर्थिक सुर्खियों में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 अंकों की कटौती कर 5.5% किया। नकद आरक्षण अनुपात CRR में 1% की कमी की। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई का अनुमान 4% से घटाकर 3.7% किया। बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स में लगभग 750 अंक का उछाल। निफ्टी भी बढ़त से 25,000 से ऊपर दर्ज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। Well, let's take a look at the first story this evening. In its bi-monthly policy today, the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India decided to reduce its policy repo rate by 50 basis points to 5.5%. This third consecutive cut exceeds most estimates of a repeat of 25 basis point cuts made in February and April policies. The total reduction in repo rates so far in 2025 now stands at 1%. RBI Governor Sanjay Malhotra said the front-loading of interest rate cut was done to boost economic growth amid uncertainties in the global trade environment. He said, inflation was well below the 4% medium-term target and inflation outlook was positive given the subdued global commodity prices and prospect of good monsoon. This gave room to the RBI to focus on boosting economic growth, to encourage faster policy transmission by ensuring smooth liquidity and credit flow. The MPC also cut the cash reserve ratio or CRR by 1%. The standing deposit facility rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%. After the reduction of the repo rate by 50 basis points, it is expected that all external benchmark lending rates linked to it will decline by a similar margin. It is likely that banks may also reduce their lending rates. However, RBI today also hit a cautious note by shifting its policy stance from accommodative to neutral, citing the current challenges in the global trade scenario. RBI Governor said a neutral stance means the next move will be based on upcoming data. Further, the RBI Governor said India's macroeconomic fundamentals were strong and despite global headwinds, RBI retained its forecast for India's GDP growth in 25-26 at its earlier estimate of 6.5%. The RBI Governor also said that the inflation outlook for FY26 has been revised to 3.7% from the earlier 4%. सुषमा, आज की सबसे बड़ी खबर जिसने शायद बाजार को भी उत्साहित किया, आम उपभोक्ताओं को भी उत्साहित किया और शायद जितनी उम्मीद से आज शायद उम्मीद से ज्यादा मिल गया। तकरीबन 0.25% की कटौती के सभी लोग ने अनुमान लगाया था। बिल्कुल 0.5% की अगर कटौती होती है तो इसके क्या मायने हैं आम उपभोक्ता के लिए जो ऑटो लोन लेता है या उसको अन्य किसी लोन लेना होता है, उसमें उसकी EMI में सीधे तौर पे कितनी कटौती आपको नजर आती है इससे? देखिए, ये जो RBI ने किया है, ये 50 बेसिस पॉइंट्स की जो कटौती की है इंटरेस्ट रेट में, अब 5.5% का रेपो रेट आ गया है
और कैश रिजर्व रेशियो भी उन्होंने 1% उन्होंने कम किया है। इन सारी चीज़ों से ये जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको हम समझते हैं एक बहुत ही बोनस मिल रहा है, एक बूस्ट मिल रहा है। लोग तो ये भी बात कर रहे हैं, बजूका शॉट की बात कर रहे हैं। और हाँ, जिन लोगों ने ऋण लिए हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जो ऋण का रेट है वो कम हो जाएगा। तो वही 50 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर आपका जिस लेवल का है वहाँ उनकी EMI भी काफ़ी उनकी कम होगी। लेकिन ये इसका जो अंदाज़ा हम हर बैंक के हिसाब से नहीं कह सकते, क्योंकि हर बैंक अपने तौर पे ये इसकी कटौती करता है। और काफ़ी बैंक्स जो हैं काफ़ी देर लगाती हैं इन चीज़ों का जो ट्रांसमिशन डाउन टू। मतलब आपका मानना ये है कि आम उपभोक्ता तक ये कटौती का फायदा कब तक पहुंचेगा, उसका अनुमान लगाना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ बैंक्स जल्दी करते हैं और कुछ बैंक्स देर से करते हैं, और उनके ऊपर ये मतलब डिपॉजिट रेशियो का भी फर्क पड़ता है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने तो साफ साफ कहा है कि उम्मीद है कि बैंक इसको सीधे सीधे पास ऑन करेंगे उपभोक्ताओं तक के लिए। हाँ। तो इनकी बातों का कहीं तो कुछ प्रभाव भी पड़ेगा, और क्योंकि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहे हैं जहां पे आज की तारीख में हमारे पास सब तरीके से एक अच्छी उत्साहजनक खबरें हैं। महंगाई दर नियंत्रण में है, और अगर हम विकास दर को जितने अनुमान से था उसके आसपास ही पाते हैं, साथ ही साथ हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो भी नियंत्रण में है। बिल्कुल। इतनी सारी अच्छी खबरों पे अगर रिजर्व बैंक अब अपना स्टैंस ये बनाता है कि नहीं, अब हमें ग्रोथ पे ध्यान देना है और हमको किसी भी हालत में अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, बिल्कुल, ये कितना सधा हुआ और कितना सही कदम मानते हैं? देखिए, ये अनुमान जैसे हमने पहले भी बात की और आपने भी बात की कि अनुमान ये था कि शायद 1/4 ये बढ़ेगा, 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेगा अभी, और शायद 3-4 महीने के बाद फिर 25 बेसिस पॉइंट्स पे फिर बढ़ेगा इतना। लेकिन रिजर्व बैंक ने ये तय किया है, और हमें इसका क्रेडिट देना चाहिए पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्योंकि कहा गया कि 5-1 से मतलब इसके मतलब ज़्यादातर पॉलिसी MPC में लोग इसके साथ सहमत हैं कि हमें एकदम से ये 50 बेसिस पॉइंट्स पे ये कदम लेना चाहिए। इसका मायने ये है कि जैसे आपने कहा कि इस वक्त जो है हमें इस वक्त का फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इस वक्त बहुत अच्छे हैं। खासकर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इन्फ्लेशन की दर जो है वो कम हो गई है। अभी आप अप्रैल में देखें कि 3.17% हुआ है, और RBI ने कहा है कि इस साल के लिए एस्टिमेट ये है 3.7%, और जो अप्रैल का जो डेटा है वो कह रहे हैं कि 6 साल के बाद इतना कम हुआ है इन्फ्लेशन। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि फोरकास्ट ये है कि इस साल मानसून बहुत बढ़िया होगा, मतलब क्रॉप भी अच्छा होगा। तीसरा ये है कि इस वक्त ये जो सारी ट्रेड और टैरिफ की जो बातें हैं थोड़ी सी ये धीमी हो गई हैं, थोड़ी सी जो हलचल है इसके बारे में वो कम हो गई है। अमेरिका भी थोड़ा सा समझ लीजिए सहमा हुआ है, चीन से भी बात करके, बाकी देशों से बात करके। तो ये जो इस वक्त जो जैसे मैंने कहा, और अभी हाल ही में हमारे जो GST कलेक्शंस फिर से इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ते हुए 16% बढ़े हैं अप्रैल में। तो सारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इस वक्त बहुत ही पॉजिटिव हैं, और इस हालात में अगर आप एक जैसे कहते हैं बूस्टर शॉट टू द इकोनॉमी आप देते हैं, तो जो ग्रोथ की जो दर है, हाँ ज़रूर सेंट्रल बैंक ने कहा है कि 6.5% इस साल होगा, लेकिन आगे वाले दिनों में हमारी उम्मीद ये है कि हमारा देश अगर सबसे इस पूरे विश्व भर में सबसे तेज़ माना जाएगा इकोनॉमी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें अपनी जो ज़रूरतें हैं, ज़रूरत को देख के हमें तो 8-9% की तरफ जाना चाहिए। तो ये और RBI चेयरमैन ने इसके बारे में जिक्र भी किया है कि हमें बहुत हाई पाथ पे जाना है, 8% कम से कम। तो इससे ये जो बूस्टर शॉट से देने से मेरे ख्याल में जो रफ्तार है ग्रोथ की वो थोड़ी बढ़ेगी इस साल।
Well, speaking of needs and self-reliance, so let me come to sectors that are most to benefit from this move. Perhaps, there's been a big push to the semiconductor sector, to the AI sector, and now to the defense sector, given the situation that has been existing in the past few days. So do you think, that this move could particularly benefit these three sectors and, give the economy a boost overall? Yes, absolutely. Now, semiconductors, you mentioned, we are now, we are just starting off in semiconductors, but we're starting off in a big way. The semiconductor mission, of course, has a huge outlay, but that's considered very small as far as semiconductors are concerned globally, So, but we have some of the global companies which are coming here. NVIDIA chairman has also come. He's talked about the fact that, the kind of talent we have in this country as far as semiconductor designing is concerned. Design of chips. So we do have that kind of talent. AI, similarly, again, we have the kind of talent that is required to move forward in this area. And all the big tech companies are looking to set up, of course, they already have bases here in India, but they are looking to expand their research and development and base it in India, which is a big thing for us. And then, of course, coming to defense, whatever we are doing, we are importing equipment, we might be importing planes, but now the news coming in of indigenization, that is collaborations with foreign companies and actually producing these kind of equipment over here. Absolutely. That is, again, another game changer for us. So I think the manufacture sector is certainly going to benefit from this development. उद्योग के लिए अगर पूंजी की जो लागत है, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, अगर उसमें कमी आती है, तो जैसा निहारिका जानना चाहती थी कि अगर कॉस्ट ऑफ फंड की अगर में कमी आती है तो निश्चित तौर पे इन सब जो नए सेटअप्स हैं उसके लिए एक काफ़ी बूस्टअप मिलता है. दूसरी, इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कैश रिजर्व रेशियो में, इसमें भी 1% की बड़ी कटौती की गई है. 1% की कटौती का अगर सीधे तौर पर, जहाँ तक मैं मानता हूँ, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की एडिशनल लिक्विडिटी बाजार में आना. जी, क्या बैंकों को इतनी बड़ी लिक्विडिटी की ज़रूरत है, या रिजर्व बैंक की एमपीसी में के मन में क्या था कि बाजार में इतनी एडिशनल लिक्विडिटी लाना इस समय इतना ज़रूरी था? क्योंकि उनके मन में एक डर तो कम से कम बाहर था कि हमें महंगाई के मोर्चे पे कोई बहुत लड़ाई नहीं लड़नी है, चाहे वो खुदरा महंगाई दर हो, चाहे वो थोक महंगाई दर हो, दोनों में हमें बहुत राहत है और हमारा राजकोषीय घाटा भी नियंत्रण में है. इन दोनों चीज़ों के पास ये जो एक कदम है, 1% अगर सीआरआर में कमी की जाती है और उसको 3% पे लाया जाता है, ये कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा कदम है और इसके कितने बड़े फायदे हमको नजर आएंगे? देखिए, जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा धीमे चल रहा था. अब हम कैपेक्स की बात कर रहे हैं. सरकार ने काफ़ी मतलब सब्सटैंशियली इंक्रीज किया है पिछले 5-6 सालों में जो पब्लिक कैपेक्स और प्राइवेट कैपेक्स इससे धीरे चल रहा था. अब एक जो चीज़ जिसके बारे में उद्योगपति कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है यहाँ पर हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और बाहर के देशों में इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट आसान है क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंडिंग वहाँ बहुत कम है. तो इससे एक ये जो ग्राउस है इंडस्ट्री का ये थोड़ा कम हो जाता है. दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग, लिक्विडिटी जो बैंक्स में, जैसे आपने कहा कि बैंक्स को ज़रूरत है कि नहीं, बैंक्स को ज़रूरत है कि वो आसानी से ये पैसा ये प्राइवेट उद्योगों को दे नए प्रोजेक्ट्स के लिए. और नए प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, वो एकदम से नीचे आएगा ये एक कदम से. And very quickly, Sushma ji, before we move on to the next story about the markets, so the RBI has also changed its stance from accommodative to neutral. So very briefly, what would you mean by the two terms, and what is this change in policy stance? So the accommodative tends to be a more softer kind of approach towards monetary policy. Neutral is, as as the word says, it will go by data. And the Reserve Bank chairman has said that just because we have done this does not mean that going forward, for instance, in the case of cash reserve ratio specifically, he has said we have done this, but going forward we will have to see the situation. So they will go by the data as things emerge in the coming months, depending on inflationary pressures, depending on the monsoon, depending on crops, depending on investment growth. And they will make their changes accordingly. So they're not going to necessarily have a positive approach, going by the fact that they have done 50 basis points. There's a feeling that interest rates, that we are going to be accommodative. No, we are going to be neutral
एंड चलिए नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी का दौरा। रिजर्व बैंक द्वारा उम्मीद से अधिक रेपो रेट और सीआरआर में सकारात्मक बदलाव से बाजार में उत्साह रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग 1% की तेजी से 747 अंक उछलकर 82,189 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% की बढ़त से 252 अंक उछलकर 25,003 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.9% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices ended the week on a firm note, rising nearly 1%. Market sentiment was boosted by a more than expected 50 basis point cut in repo rate and a 100 basis point cut in the cash reserve ratio by RBI in its monetary policy. This easing of monetary policy to boost growth triggered a sharp rally in banking, auto, and real estate stocks. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, surged 747 points or 0.92% to close at 82,189. The National Stock Exchange's Nifty 50 also climbed 252 points or 1.02% to close at 25,003. The broader market indices also showed an upward trend. BSE Mid-Cap Index rose 0.91%, while the Small Cap Index closed with a 0.43% gain. In the Sensex Index, 28 out of 30 companies ended with gains. Among the top gainers, Bajaj Finance rose 5.01%, Axis Bank gained 3.11%, and Maruti added 2.64%. The only two stocks to lose today were Sun Pharma with 0.1% fall and Bharti Airtel, which lost 0.39%. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors closed in green territory. Among the top gainers, Realty surged 4.74%, Finance gained 1.79%, and Metal sector added 1.56%. On the other side, the only two sectors to fall today were capital goods with 0.3% lost and industrials which slipped 0.08%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,278 companies advanced. Shares of 1,744 companies declined, while shares of 134 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 95 companies hit their 52-week high, while 18 hit their 52-week low. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 16 पैसे की मजबूती से 85.64 प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। डॉलर इंडेक्स 98.9 के स्तर पर नजर आया। सुषमा, बाजार ने शेयर बाजार की अगर खास तौर पे बात करें जी, रिजर्व बैंक ने जो बूस्टर डोज दी शायद उससे सीधे सीधे कदम ताल करी, लेकिन उतनी तेज उछाल फिर भी नहीं थी। और अब पीछे आपने अभी एक बात जरूर करी थी कि सरकारी क्षेत्र में तो हमारा जो निवेश है वो बढ़ रहा था, लेकिन निजी क्षेत्र कहीं पिछड़ रहा था। बिल्कुल। सीआरआर को आपने उससे जोड़ने की भी कोशिश करी। बाजार इस पूरे परिप्रेक्ष्य में किस तरह से आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आता है? हालांकि आज भी बाजार की दशा और दिशा दोनों बहुत अच्छी थी। अगर हम सोमवार की बात करते हैं जो आने वाला सप्ताह होगा, वहां कितनी तेजी की उम्मीद नजर आती है या बाजार की कौन सी दिशा नजर आती है? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर आप सोमवार की बात करें तो मेरे ख्याल ये जो तेज़ी है मेरे ख्याल वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसका जो असर है, इसकी जो रैमिफिकेशंस हैं 2-3 दिन से, मतलब लोग सोचने के बाद एनालिस्ट्स और जो बाज़ार के जो मतलब स्टॉक्स शेयर्स खरीदने वाले हैं इन्वेस्टर्स, इसके बारे में जो इम्प्लिकेशंस हैं रेपो रेट के कटौती के बारे में, तो वो थोड़ा सा इसका इम्प्लिकेशन आ जाएगा। क्यों ये मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा है। आपने कहा कि उछाल इतनी नहीं आई जितनी होनी चाहिए थी, पर मेरे ख्याल में 2 हफ्ते से तो बिल्कुल धीमी चल रही है मार्केट, और अब एकदम से उछाल ऑटो सेक्टर में आया है, एकदम से बैंकिंग में तो आना ही था, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग को तो बहुत फ़ायदा होगा इससे, और रियल एस्टेट में भी ज़रूर इसका असर होगा, जहां बड़ी मात्रा में निवेश होता है। हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी मात्रा में निवेश होता है, और ये मेरे ख्याल ये कुछ दिन तो चलेगा, ये क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ये बूस्टर शॉट है,
और इसकी जो implications हैं धीरे धीरे पता चलेंगी. असर भी देर तक रहेगा. बिल्कुल, असर भी देर तक रहेगा. I was going to ask you that, whether it's a short-term immediate reaction or is it bound to stay for a while. I think my question just got answered. So we'll move on to the rupee. At the forex market, the rupee today appreciated by 16 paise to close at 85 rupees and 64 paise against the US dollar. The dollar index, which indicates US dollar strength against a basket of 6 other leading currencies, was trading at 98.99 in intraday trade. And next, we also have a story about Kashmir. Prime Minister Narendra Modi said the inauguration of mega infrastructure projects today marks a turning point in Jammu and Kashmir's development journey. Inaugurating the Chenab Bridge and Anji Khad Bridge in Katra, Mr. Modi highlighted that the state-of-the-art Chenab Bridge will improve connectivity between Jammu and Srinagar. He expressed happiness, said that the country from Kashmir to Kanyakumari is now connected with the railway network. The Prime Minister said the Udhampur-Srinagar-Baramulla rail line project is a symbol of a new, empowered Jammu and Kashmir and a resounding proclamation of India's growing strength. He asserted that the Chenab and Anji bridges will serve as gateways to prosperity for Jammu and Kashmir. He laid the foundation stone, inaugurated and dedicated to the nation multiple development projects worth over 46,000 crore rupees. He emphasized that the Udhampur-Srinagar-Baramulla rail line project is not just a name, but a symbol of Jammu and Kashmir's new strength and a testament to India's growing capabilities. He also flagged off Vande Bharat trains, enhancing connectivity within Jammu and Kashmir. He also laid the foundation stone for a new medical college in Jammu, reinforcing the government's commitment to strengthening healthcare facilities in the region. The Prime Minister extended his best wishes and congratulated the people on this new era of growth and transformation. सुषमा, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो बहुत स्पष्ट और बहुत साफ है. उन्होंने ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में भी रेल मार्ग से रेलगाड़ियां पहुंचाई हैं. इसका चाहे हालांकि ठीक है वो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जो भारतीय रेलवे ने करके दिखाया है और ये निश्चित तौर पर सरकार की एक सामूहिक सफलता है जिसके बिना ये संभव शायद ना हो पाता और इतने आसानी से ना हो पाता. लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम है मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि कश्मीर से अगर कुछ भी वहां पे खास तौर पे वहां पे अगर हमको सेब की फसल लानी होती थी या अन्य उत्पाद लाने होते थे वहां तक विभिन्न क्षेत्रों में लाने में जितनी दिक्कतें होती थी इस रेल मार्ग को बनने से इसका कितना बड़ा फायदा होगा, कितना बूस्टअप मिलेगा, ये रोजगार के कितने नए आयाम स्थापित करेगा वहां पे. देखिए, पहली बात तो ये है जो हॉर्टिकल्चर क्षेत्र है वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में उसकी अगर उत्पादन यहाँ बाकी देश में आने की कोशिश जब होती थी और एक्सपोर्ट की कोशिश जब होती थी तो सिर्फ 2 जरिए थे यहाँ लाने की, एक तो बाय एयर और दूसरा बाय रोड. बाय एयर का ये है कि बहुत महंगा है, बाय रोड का ये था कि ये सीजनली प्रॉब्लम्स होती हैं, समय बहुत ज़्यादा लग जाता था. नहीं, और जो ये विंटर में बहुत मुश्किलात आती थी, रास्ते बंद हो जाते थे, ये बर्फ की जो तकलीफ़ें होती थी, कभी फ्लड्स भी बीच बीच में आते हैं तो ये बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं रास्ते में, ये माउंटेनस इलाका है. तो ये जो ट्रेन आई है इससे ये पूरा माहौल जो है बदल जाता है कि ये कभी भी ऑल वेदर ट्रेन है, ये पहाड़ों के बीच में से जा रही है, ये मतलब रिवर्स के ऊपर इतने ब्रिजेस बने हैं और टनल्स इतने बने हुए हैं, तो ये ऑल वेदर और सस्ता. आपको बाय एयर का जो खर्चा है वो नहीं होगा. भाई सर्दियों में आपको बाय एयर ही जाना पड़ता था. तो ये सारी जो हॉर्टिकल्चर जो क्षेत्र है जिसका मेरे ख्याल रेवेन्यू वैल्यू कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ है, वो अब इसका शायद 40,000 करोड़ बन सकता है, 50,000 करोड़ बन सकता है इससे. तो इससे बहुत, और जैसे आपने कहा ये जो जॉब्स के क्षेत्र में कितनी नौकरियां नहीं मिल जाएंगी अगर ये क्षेत्र खुल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, तो फिर नौकरियां तो वैसे ही बढ़ेंगी. So I think the talent in Jammu and Kashmir as far as the youth is concerned was largely untapped and they had to move out for education quite a bit, right? So do you think this is also going to make it easier for education as well as startup opportunities to reach the nation, to reach that region and in turn, boost its growth and prosperity? Yes. So if you have seen many television programs in recent months, people have been interviewing young people in Kashmir.
and they are not interested in they're not interested in terrorism or activism. They are interested in getting educated. They're interested in getting involved with the mainstream of Indian society, because Indian society is is held up as a beacon in the world, as for we are specializing in IT, we are specializing in artificial intelligence, and they also want to become part of this wonderful journey. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को परिवर्तनकारी बताया है। उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी निवेश की सफलता आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूरदर्शी सुधार, साफ नीति और वैश्विक समूह द्वारा भारत के बेहतर आर्थिक भविष्य पर भरोसा है। देश में अधिकांश क्षेत्रों में 100% तक FDI की अनुमति है। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पहलगाम में बर्बरा आतंकी हमले की निंदा करने और भारत को समर्थन देने के लिए मध्य एशियाई राष्ट्रों के प्रति आभार व्यक्त किया। नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत मध्य एशियाई देशों का विश्वसनीय विकास साझेदार है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत तथा मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंध काफी मजबूत हुए हैं। बहुत संक्षेप में, इस तरीके की जब हम कूटनीतिक सफलता हासिल करते हैं तो वो हमारे आर्थिक परिक्षेत्र को कितना मजबूती प्रदान करते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो सेंट्रल एशिया है उसके साथ हमारे काफ़ी आर्थिक संबंध हैं। तेल और नेचुरल गैस की भी उनकी उत्पादन बहुत ज़्यादा है, और इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट टाइज भी बढ़ गई हैं। नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पे। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर तेजी का दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.5%, जापान का निक्केई 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.4% की बढ़त से बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में लगभग 0.5% की गिरावट भी नजर आई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिलाजुला रुख रहा। लंदन और फ्रांस के शेयर सूचकांक जहां मजबूती के दायरे में दिखे, वहीं जर्मनी के शेयर सूचकांक में मामूली गिरावट रही। As for the US markets, on the eve of the all-important jobs data, there was a downward trend in US stock markets. Dow Jones Industrial Average shed 0.25%, S&P 500 fell 0.53%, and Nasdaq Composite closed 0.83% down. For crude oil, oil prices slipped marginally today. All eyes were on trade talks between US and China. If the trade war between the two nations cools down, it will increase demand expectation for oil. Brent crude was trading 0.6% down. My apologies, that should read Brent crude was trading 0.06% down at $65.30 per barrel. WTI crude was also 0.09% down at $63.31 per barrel when reports last came in. नजर डालते हैं सराफा बाजार में। सराफा बाजार में सोना आज मामूली गिरावट से 97,930 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 1% से अधिक की बढ़त से 1,05,890 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोने के वायदा भाव गिरावट से 97,874 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहे, जबकि चांदी 1.1% की बढ़त से 1,05,600 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। सुषमा, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी है, सोने और चांदी की कीमतों में बहुत तेजी है, और नित नए सोने में जितनी तेजी नजर आ रही थी, अब कहीं ना कहीं चांदी उस रफ्तार को आगे निकलती हुई नजर आ रही है। सोना और चांदी मेरे ख्याल आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और उम्मीद ये है, और सिर्फ भारत की नहीं, वैश्विक स्तर पे भी देखें तो कॉमेक्स मैक्स में भी $36 के आसपास अगर चांदी पहुंच गई है, तो ये अगर भारतीयों के मन में तो सोने और चांदी के प्रति स्वाभाविक ललक थी ही। बिल्कुल। इसमें क्या अब जो सोने और चांदी के आपस में एक प्राइस रेशियो था वो पीछे कम हो गया था, अब क्या चांदी उस रेशियो को वापस से बरकरार करेगी और सोने से दामों में 10 ग्राम के प्रति जो किलोग्राम का भाव है और आगे निकल जाएगी? देखिए, क्योंकि सोने का भाव इतना ज्यादा हो गया कि ये जो ट्रेंड बाकी, क्योंकि सिल्वर चांदी इस वक्त थोड़ी सी सस्ती है, तो लोग चाहते हैं कि ठीक है हम सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी ही खरीद ले, तो इसी वजह से उसके लिए डिमांड बढ़ गया है। लेकिन इंडस्ट्रियल औद्योगिक तौर पे भी चांदी की उपयोगिता बढ़ रही है, चाहे हम AI की बात करें चाहे हम कंप्यूटराइज की बात करें। औद्योगिक तौर पे बहुत बढ़ गई है, क्योंकि बहुत ये यूजेस, इंडस्ट्रियल यूजेस बढ़ गए हैं। निकट भविष्य में हम चांदी और सोने के नए कीर्तिमान या नए रिकॉर्ड कुछ लगता ही है जो आप कह रहे हैं। चलिए सुषमा, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
Before we close, a reminder of the headlines. RBI reduces policy repo rate by 50 basis points to 5.5%. Also slashes the cash reserve ratio by 1%. Reduces inflation projection for fiscal 2025-26 from 4% to 3.7%. Sensex jumps nearly 750 points. Nifty surges to cross the 25,000 mark. And Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone and inaugurated and dedicated to the nation multiple development projects worth over 46,000 crore rupees in Jammu and Kashmir. And with that, it's a wrap on today's edition of Market Mantra. For now, goodbye.